Hi dear students, welcome back to our English class and this is Ayub sir. I welcome you all in our English class. So today in this video we are going to see our next poem, that is Amanda. It has been written by Robin Klein. Okay, so it's very interesting poem and it's one of my favorite. Okay, so without wasting our time, let's get started with the poem. Before proceeding with the poem, let's know something about our poet. Okay, our poet, who is Robin McMahon Clean. Okay, Robin McMahon Clean is an Australian author of books for children. She writes children's and young adult fiction. ये जो ऑथर है, ये जो पोएट है, ओके, सो वो क्या है, वो एक ऐसी ऑथर है जो यूजुअली छोटे बच्चों के लिए बुक्स लिखती है एंड शी राइट्स अ नॉवेल फॉर यंग एडल्ट्स एंड फॉर यंग एंड एडल्ट्स. ओके, उन लोगों के लिए क्या लिखती है, वो नॉवेल्स लिखते हैं. फाइन. सो दिस वॉज अबाउट आवर पोएट. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग और आगे जाने से, मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझने से पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं. ओके, व्हाट दिस पोएम टेल्स अस अबाउट. सी बेसिकली ये जो पोएम है ये एक छोटी बच्ची और उसके मम्मा के डिस्कशन के बारे में है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. सी हियर, Robin Klein has expressed the views of a little girl, Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. Mistakes which she considers so as they are not part of the code of conduct laid out by the society in which we live. अब यहाँ पर इस पोम में क्या बताया गया है, एक बच्ची है whose name is Amanda. ओके, एंड अमेंडा इज़ अ गर्ल हु इज़ ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर. उसकी मम्मा जो है, अमेंडा की मम्मा जो है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी बात की वजह से चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं. ओके, बट वाई? बिकॉज शी इज़ डूइंग अ मिस्टेक. हु? अमेंडा. एंड अमेंडा इज़ डूइंग सच मिस्टेक्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय अ सोसाइटी. सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दैट्स द रीज़न हर मदर वॉन्ट that Amanda should not do mistakes. Okay, now let's see how her mother is pointing her out and what Amanda is doing at that particular time and what is her response. So let's see. Okay, just pay your attention over here. Fine. See, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slushing and sit up straight, Amanda. Now, in the first stanza, what mother is saying to Amanda? Amanda, don't bite your nails. Okay, don't hunch your shoulders. Shoulders hunch करने का मतलब क्या है? Bend होना. Shoulders को bend करना. Okay, stop that slushing and sit up straight, Amanda. ओके, अब यहाँ पर मम्मा क्या बोल रही है कि जो लेजीनेस की वजह से तुम बैठ रही हो, ओके, वो लेजीनेस की वजह से मत बैठो, बेंड होकर जो बैठी हुई हो वैसे मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा. Clear? Now mama is saying Amanda to don't bite her nails, to sit up straight, to don't hunch her shoulders. But what Amanda is doing at that particular time, let's see. Okay, we will come to know in the next stanza. Now see here, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब अमेंडा क्या सोच रही है कि वहाँ पर एक रिलैक्सिंग एमरल्ड सी है. नाउ हियर एमरल्ड मीन्स ग्रीन. ओके, वहाँ पर एक क्या है, एक रिलैक्सिंग एमरल्ड सी है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर सिर्फ मैं अकेली हूँ. एज अ मरमेड हु इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं क्या हूँ, एक मरमेड हूँ जो एक, लैंग्वेज मतलब यहाँ पर रिलैक्सिंग. ओके, रिलैक्स्ड. सो मैं एक मरमेड हूँ जो एक बड़े समंदर में आज़ादी के साथ अकेले घूम रही हूँ. अब अमेंडा इज इन हर ओन वर्ल्ड. हियर इन द फर्स्ट स्टैंजा her mother is yelling at her, shouting at her, pointing out her mistakes, and Amanda is in her own world. Okay, clear? Understood? Very good. Now see, we will see the rhyming scheme. अब rhyming scheme क्या होता है, जो लास्ट में हमारी आवाज़ आती है,
इन द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी वर्स, ओके। एवरी जो जो लाइन है वहाँ पर लास्ट में एंडिंग में जो आवाज़ आएगी, जैसे यहाँ पर इन द फर्स्ट स्टैंजा, in the first line it's Amanda, second line Amanda, third line it's straight, okay, and fourth line third line again Amanda. So what would be the rhyming scheme? See here, A A B A, clear? यहाँ पर rhyming scheme क्या हो गई? A A B A, समझ में आ गया? So fourth line में भी क्या है? A है. Okay, now in second stanza there is a language emerald sea, okay, see me blissfully. अब यहाँ पर जो आवाज़ एंडिंग में आ रही है वो कौन सी है? ई की है. see me blissfully. So what would be rhyming scheme over here? see, right? And see, I have given you some meanings also, okay, on after every two stanzas हम पहले उसका समझेंगे मतलब क्या है, and I'll give you meaning of some important words, okay, जिससे आपको help होगी. And in the end of video, okay, in the end of video I'll give you whole summary of the poem, okay. So it will be helpful for you to read it, to understand it in an easy manner. Clear? Now you can pause the video and you can note down the important meanings. Okay, let's move ahead. In third stanza, what again mother is saying to her? Okay, now in third stanza, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पर क्या है, देखो यूजुअली होता क्या है, क्या हर घर में ऐसे ही होता है दैट अ गर्ल और अ यंग बॉय, एक छोटा बच्चा अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, एंड हिज और हर पेरेंट, ओके, दे आर जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डू दिस, डू दैट, ओके. बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आवर पेरेंट्स वांट अस टू डू, बट हियर सेम थिंग इज हैपनिंग. Mother is saying don't bite your nails and all. Now here mother is saying that she is asking now, did you finish your homework, Amanda? Okay, Amanda, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया? Did you tidy your room, Amanda? क्या तुमने तुम्हारा रूम साफ कर दिया, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मुझे ऐसा लगता है अमेंडा कि मैंने तुमको तुम्हारे शूज़ साफ करने बोला. Now if you go 2 to 3 years back, अगर तुम तुम्हारे बचपन में जाओगे, now also you are young, okay, but अभी अगर तुम तुम्हारे बचपन में जाओगे, वहाँ पर अगर तुम याद करोगे तो उस वक्त तुम्हारे मम्मा भी तुमको ऐसे ही चिल्लाते होगे, right? That have you done your homework, kid? Okay, have you tidy your room, kid? तो same way, okay, in the same way here Amanda's mother is saying her, asking her that did you finish your homework, Amanda? क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने तुम्हारा रूम साफ किया? okay, क्या तुमने तुम्हारे शूज़ को साफ किया? So here was the some mistakes, okay. It means that Amanda was not doing this all things, okay, she was in her own world. अब यहाँ पर अमेंडा क्या सोच रही है, आओ देखते हैं. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. क्या बोल रही है अमेंडा? मैं एक ऑर्फन हूँ. ऑर्फन का मतलब क्या? अनाथ, जो बस खुले आम फ्री में जो है स्ट्रीट पर रोम कर रही है, घूम रही है. एंड आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट. ओके, वो क्या बता रही है कि मैं जो है अपने मुलायम पाँव से सॉफ्ट डस्ट को क्या कर रही हूँ, मैं फैला रही हूँ. ओके, बेयर फीट यानी जो है बिना शूज़ के. ओके, सो शी इज सेइंग दैट शी इज़ इन हर ओन वर्ल्ड, कि वो पैटर्न कर रहे हैं मतलब उस पर डिज़ाइंस बना रही है, खेल रही है मिट्टी के साथ. ओके, नाउ शी इज़ अगेन सेइंग द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. वो क्या बता रही है कि जो साइलेंस है, जो शांति है, जो एकांतता है, वो गोल्डन है, वो बहुत प्रेशियस है. ओके, एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत अच्छी लगती है उसको. Okay, so this was about third and fourth para. Now see, you just pause the video and try to find out rhyming scheme of para 3. Okay, so see here, I hope that आपने जो है rhyming scheme निकाली होगी. See here, what is the rhyming scheme of para 3? Again, no need to explain, right? A A D A. See, Amanda, shoes, Amanda. Clear? Now again, what would be the rhyming scheme of para 4? Street, feet, sweet. यहाँ पर अब जो एंडिंग साउंड है या फिर जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है. सो वो क्या आएगा, ई ई ई. क्लियर?
Okay, now again I'll give some important meanings from this. Okay, you just have a look over here. ऑर्फन की मीनिंग है और हर्स्ट की मीनिंग है. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नो. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड लास्ट एंड लास्ट पैरा. ओके, लास्ट स्टैंजा. अब यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, देखते हैं. सो हियर मदर इज सेइंग दैट डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. ये तो कॉमन सी चीज़ है, राइट? हमको भी ऐसे बोला गया था, हमको भी ऐसे बोला जाता होगा कि डोंट ईट दैट चॉकलेट. ओके, यहाँ पर अमेंडा को भी उसकी मम्मा बता रही है कि तुम वो चॉकलेट मत खाओ. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. एक्ने मतलब क्या? पिंपल्स, जो पुंसियाँ आती है, फुड़िया जिसको कहते हैं हम. ओके, सो रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. क्या तुमको तुम्हारे एक्ने, तुम्हारे पिंपल्स याद है? ओके, नाउ यूजुअली बिकॉज ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, ओके, एज इन देर इज़ अ डार्क चॉकलेट इन दैट, कोको रहता है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से एक्ने आने के चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाई हियर मदर इज सेइंग दैट डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. अब मम्मा क्या बोल रहे हैं, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे प्लीज़, क्या तुम, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, विल यू प्लीज़ लुक एट मी अमेंडा. ओके, सो यहाँ पर जो है सेम डिस्कशन हो रहा है एज इट वॉज इन आर चाइल्डहुड. हमारे बचपन में जो हमारे साथ होता था, सेम सीन अमेंडा के साथ हो रहा है. ओके, नाउ अगेन अमेंडा इज इन हर ओन वर्ल्ड. व्हाट्स हर पॉइंट ऑफ व्यू? लेट्स सी. आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब यहाँ पर वो खुद को ऐसा बता रही है कि वो एक रपुंजल है. ना, हु इज़ रपुंजल? रपुंजल जो है एक जर्मन फेरी टेल जो होता था, जिसके अंदर एक ऐसी लड़की की कहानी है, ओके, जिसके बाल बहुत लंबे हैं, एंड हु वॉज जस्ट लिविंग अलोन इन दी टावर. वो टावर में अकेली रहती थी, और विच यानी उसके ऊपर जो है किसी का साया था. Okay, so what she is saying that now I am a Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. Okay, जो उसकी जिंदगी है, जो लाइफ है, वो बहुत ही अनकॉमन है. ओके, बहुत ही रेयर है. एंड आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. और क्या बता रही है कि मैं, मेरे जो लंबे बाल है, मेरे जो इतने अच्छे बाल है, मैं क्या करूँगी, उसको जो है ज़मीन पर या कहीं पर ऐसे फैलाऊंगी नहीं. ओके, क्लियर? So this was of 5 and 6. Okay, second last and last para. Now let's see what's the rhyming scheme of fifth paragraph. So rhyming scheme of fifth paragraph is A A F A. See, Amanda Amanda, you Amanda. Okay, clear? And what is the rhyming scheme of last paragraph? That is G G G. Okay, now see again some difficult words. You can note it down, you can pause video, you can note it down over here. Clear? So do you have any doubt? If you got any doubt, you can just comment in the comment section. Okay, now I have given over here some summary of the poem. Clear? So just have a look over here and try to note it down. Okay, thank you for watching.